I wish you a very happy morning to all the students. Myself, Mrs. Nikita Mikwan, presenting to you Standard 7, Subject Social Science, Chapter number 7, India, Location, Border, Area and Physiography. You have learnt about the location, borders, area and physiography of Gujarat in class 6. Now we will learn about India. Here you can observe the map. See, this is the world map and how it is India. Here you can see India. Our capital is Delhi, and in Arabian Sea you can see Sri Lanka. This is the map of Asia. Okay. Now, India lies between 8.4 latitudes to 37.6 north latitude and 68.7 east altitude longitude to 97.25 degree north longitude. Here you can see India, where it falls in Asian map. Now here are some blanks about the chapter. Let's solve out it. India is in the south of Asia. राइट इंडिया जो है वो एशिया के साउथ में है. बांग्लादेश इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया. द अरेबियन सी is located in the west of India. The Himalaya mountains is located in the north India. Sri Lanka is located in the south of India. Pakistan country is located in the northwest of India. Now on the next page you can see the political map of India, all the states and its capitals. Observe Pakistan, China, Tibet, Sikkim. Here is our Gujarat. Here is Sri Lanka, is in south of India, Bay of Bengal, and this one is Arabian Sea and Indian Sea. Here Andaman and Nicobar Island. Now let's see about the area of India. India extends from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and covers a distance of 3214 km from north to south. It extends from Arunachal Pradesh in the east to Dwarka in the west, covers 2933 km from east to west. The land area of India is approximately 32,087.263 square kilometer. Hence, India is considered as the seventh largest country in the terms of land area. India tapers towards the north and the south and is relatively bordered in the center. There are 29 states and 7 union territories including New Delhi, the capital of India. तो इंडिया के एरिया के बारे में बात करें तो कश्मीर से लेके नॉर्थ में कन्याकुमारी तक साउथ में इंडिया का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एंड अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में वहाँ से लेके द्वारका इन वेस्ट वो कवर करता है लैंड एरिया 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. पूरे इंडिया का लैंड एरिया है
lakhs 87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इस वजह से इंडिया को नाम मिला है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, it having 29 states and 7 union territories, including यूनियन टेरिटरीज में न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया का भी समावेश किया जाता है। Now let's see about physiography of India. The landform of India is not uniform everywhere. On the basis of variation in landforms, India can be divided into following 5 physiographic divisions. Physiography means geographical design of the earth. जोग्राफी की तरफ से इंडिया का डिज़ाइन कैसा है वो हमें इसमें पता चलेगा। ओके, इंडिया ये हमेशा ही यूनिफॉर्म नहीं रहा है कि चलो प्लेन्स है ओनली माउंटेन्स है या कोस्टल प्लेन्स है, हमेशा उसकी जो लैंडफॉर्म है वो चेंज होती रही है। तो उसको पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है, वो है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड डेक्कन, प्लेटूज ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, आर्किपिलेगोस एंड इंडियन डेजर्ट। Let's see about the northern mountain range. The Himalaya is a chain of 3 mountains and is called the Himalayan mountain range. It is the highest mountain range in the world. There are 3 divisions of the northern mountain range: Himalayan mountain range, Himalayas, ईस्टर्न हिमालयास और पूर्वांचल रेंज। जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है हिमालय की, वो एक 3 माउंटेन की पूरी चेन है, तो उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ हिमालयन माउंटेन, सेकंड वन हिमालयास एंड थर्ड वन इज़ ईस्टर्न हिमालयास और पूर्वांचल रेंज। There are 3 distinct and parallel ranges. The northernmost range towards China is known as the Greater Himalayas. The central Himalayas lies in the central, and the range towards in India is called Shivalik range. कि नॉर्दर्न रेंज को चाइना की ओर है, उसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है क्योंकि उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, और सेंट्रल हिमालयास को जो सेंटर में है उसे, और जो इंडिया की तरफ है उसे शिवालिक रेंज कहा गया है। Now let's see northern mountain range में mountain range of Himalaya. Mount Godwin Austin Peak of India is 8,611 meters high. It lies in the Karakoram range. Mount Everest is 8,848 meters, is the highest peak in the world, which is located in Himalayan range in Nepal. Kanchenjunga. Kanchenjunga is 8,518 meters. Nanda Devi is 7,870 meters, and Badrinath is 7,138 meters are high peaks located in the mountainous range region of the Himalayas in India. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमालयाज़ में जो चाइना की तरफ है वो रेंज सबसे ऊंची है, राइट। तो कई बार वो चाइना की तरफ से होते हुए हमलों से हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करती हैं। सबसे ऊंची पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, उसकी रेंज है 8,840 किलोमीटर्स, एंड माउंट गुडविन ऑस्टिन वो 8,611 किलोमीटर्स है। Now let's see the second one, mountainous range of eastern Himalayas. The eastern part of the Himalayas is mountainous, Patkoi and Lushai. It's very high hills form parts of the eastern Himalayas, whereas Garo, Khasi and Jaintia and Naga, the
not so high hills from the parts of the southern Himalaya from the east-west direction. Here you can see mountainous range. See, पतकोई है और लुशाई जो है जो इंडिया की तरफ पड़ते हैं वो बहुत ही हाई है एंड गरो खसी जैंतिया नागा वो इतनी हाई रेंज नहीं है जो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में पड़ती है. नाउ लेट्स सी अबाउट द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. द प्लेन्स और टू द साउथ of the northern mountain range are formed by the alluvium brought by the Himalayan and peninsular rivers. They cover the vast area of northern India. That is why they are known as the plains of North India. The plains made by the rivers are so vast that is one of the largest plains in the world formed by rivers. Due to the vastness of these plains, it is one of the most prosperous and populated areas in India. राइट जो प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया के आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंज से एल्यूवियम और हिमालय से पेनिनसुलर रिवर्स निकलती है. तो जो रिवर्स के जो एरिया है वो बहुत ही अच्छे होते हैं तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है क्योंकि पानी भी जल्दी मिल जाता है और जो रिवर प्लेन्स है उसमें रहने की जगह भी सभी लोगों को अच्छी तरह मिल जाती है. नाउ लेट्स सी रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालयाज. यू कैन सी हियर द साइन ऑफ रिवर. एक पतली सी लाइन है वो रिवर्स की है. तो नेपाल के आगे जो है वो हिमालयन रेंज है. वहाँ से हम देखते हैं कि गंगा जाती है, यमुना है, गोमती है, गंडक है, कोसी है, ओके एंड दामोदर है. फिर वो दूसरी जगह पे आती है निकल के तो उसका नेम चेंज होता था महानदी बेटवा केन. नो हियर यू कैन राइट. नाउ लेट्स सी मेजर लेक्स इन इंडिया. हियर यू कैन सी वुलर लेक, सांबार लेक, चिल्का लेक, Koleru and Pulicat. These are the major lakes of India. Now let's see the central and Deccan plateaus of India. The central and Deccan plateaus lie to the south of the plains of North India. They are spread like a triangle surrounded by water bodies on the three sides. So it is called peninsula. It is the oldest landmass made up of rocks. The rift valleys of Narmada and the Shan rivers are located in this plateau. This plateau is further divided into two parts, Malwa Plateau to the north and Deccan Plateau to the south. The soil in this plateau is not very fertile, but because it is black, this area yields a variety of crops and is also treasure house of many minerals. यहाँ पे आप इंडिया में प्लेटूस देख सकते हैं राइट जो पिंक कलर में बताए गए हैं. तो सभी तीनों साइड से वो जो लैंड एरिया है वो वाटर से कनेक्टेड होने की वजह से वो प्लेटू कहा जाता है राइट. और उसमें दो पार्ट डिवाइडेड है, मालवा प्लेटू टू द नॉर्थ में मालवा प्लेटू है और साउथ में डेक्कन प्लेटू है. तो वो ज़्यादा फर्टाइल तो नहीं है लैंड उसकी, बट उसमें ब्लैक सॉइल होने की वजह से उनमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम उगा सकते हैं और उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. India is surrounded by seas on the all three sides. The coastline is approximately 7,517 km long. The coastal region is made up of narrow plains. The ocean lies on the ocean lies on one side of the coastal plain while the peninsular plateau lies to the other.
The region lying to the east of the Eastern Ghats is known as Eastern Coastal Plains. It is well known for its fishing industry. Chennai, Pondicherry, Machilipatnam and Visakhapatnam, Vizag are the well-known ports located on the eastern coastal plain. इंडिया के ईस्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का ईस्ट, वेस्ट और साउथ जो तीनों पार्ट है इज सराउंडेड बाय वाटर. इंडिया की कोस्ट लाइन है अप्रॉक्सीमेटली 7,517 किलोमीटर लॉन्ग. तो इतना सारा दरिए का एरिया कोस्टल रीजन है, उसमें नैरो प्लेन्स है, बीच में कई जगह मिल जाती है तो नैरो प्लेन्स हो जाता है, तो वो पेनिनसुलर प्लेटू कहे जाते हैं. जो रीजन है लाइंग ईस्ट टू ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जाने जाते हैं. स्टेट्स लाइक चेन्नई, पांडुचेरी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम वो कोस्टल एरिया में होने की वजह से वहाँ के फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है. The region lying to the west of the Western Ghats is known as the Western Coastal Plains. It is narrower than the Eastern Coastal Plains. This area has black fertile soil with alluvium deposits which is conducive to the growth of crops. The Western Coastal Plain is renowned for its transportation services and fishing industries. The major ports and cities like Mumbai, Kandla, Mangaluru, Calicut and Tiruvananthapuram are located in this region. तो वेस्ट घाट में आप देखोगे तो वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से थोड़े से नैरो है, छोटे हैं, उसमें ब्लैक फर्टाइल सॉइल है, उसमें बहुत सारे क्रॉप्स हम उगा सकते हैं और फिशिंग इंडस्ट्री की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा है. तो मेजर सिटीज़ एंड पोर्ट्स लाइक मुंबई, कंडला, मंगलुरु, कैलिकट, तिरुवनंतपुरम वो इस रीजन में आए हुए हैं. आर्चिपेलागो और आइलैंड्स. A piece of land smaller than a continent that is surrounded by water is an island. एक छोटा सा टुकड़ा होता है ज़मीन का जो वाटर से सराउंडेड होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं या आर्चिपेलागोस कहते हैं, राइट. अ ग्रुप ऑफ मैनी सच आइलैंड्स फ्रॉम आर्चिपेलागो, द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया, whereas the Andaman and Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal towards the east of India. लाइक इंडिया में आपको लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड और वेस्ट में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे. नाउ डेजर्ट्स. द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज. द सॉइल हियर is sandy and the climate is dry and unbearable. Most of the time this region receives less than 20 centimeter annual rainfall. Hence it faces water shortage and remains dry, barren and uninhabited due to the scarcity of water and unavailability of basic necessities. The population of this region is very less. डेजर्ट की बात करें तो राजस्थान, क्योंकि अरावली माउंटेन के वेस्ट में आया हुआ है, यहाँ की सॉइल सैंडी है, इसमें रेत ज़्यादा होती है और उसका क्लाइमेट बहुत ही हार्श तरीके से ड्राई और अनबेरेबल है, जो हम सहन नहीं कर सकते. उसमें पूरे डेजर्ट में 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है एन्यूअली. तो इस वजह से उसमें वाटर की शॉर्टेज रहती है और वो हमेशा ड्राई रहता है. तो वाटर की फैसिलिटी ना होने की वजह से और बेसिक नेसेसरी थिंग्स ना होने की वजह से ये रीजन का पॉपुलेशन बहुत ही कम है. डेट प्लाम्स एंड कारवान्स पुल्ड बाय कैमल्स आर सीन इन दिस रीजन. नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग इरिगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज वाया द इंदिरा कैनाल. The canal has succeeded in turning the area fertile and favorable for agriculture growth.
The kind of desert in the run of Kutch differs from the desert of Rajasthan desert. The Kutch desert is divided into two parts, big run and small run. The soil of the run of Kutch is highly saline. It appears as if the desert is soil covered with a white sheet. This is the only desert its kind in the world. अभी हम देखें कि डेट प्लाम्स, खजूर और कारवान्स जो कैमल के द्वारा कार्ट ड्रॉ किया जाता है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और नॉर्थ राजस्थान से सतलुज रिवर के द्वारा इंदिरा कैनल के थ्रू वहाँ पे सक्सेसफुली वो ज़मीन को फर्टाइल किया गया है और एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल किया गया है। डेजर्ट में राजस्थान के डेजर्ट के बाद रन ऑफ कच्छ आता है। वो राजस्थान के डेजर्ट से बहुत ही अलग पड़ता है, इसलिए वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बड़ा रन और छोटा रन। रन की कच्छ के रन की ज़मीन इतनी अलग है राजस्थान के वहाँ से कि जैसे उस पर ऐसा लगता है कि उस पर एक वाइट शीट बिछाई गई हो। तो ये ओनली डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में जिसकी ये काइंड अलग है और उसकी ज़मीन भी अलग है, वरना मोस्टली डेजर्ट वो रेत वाले होते हैं, राइट, सैंडी। Now let's see question answers of this exercise. Answer the following questions. How did the islands come into existence? Island कैसे बने हैं? Sometimes diastrophic movements take place from geosyncline over the sea floor. So the sea floor emerges above the sea surface. As there is water around the land, it turns into an island. All islands might have been emerged this way. कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रोफ्रिक मूवमेंट्स के द्वारा, मीन्स कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, वेव्स ज़्यादा आने लगती है और कभी कम आने लगती है, तो इस वजह से समुद्र की चारों ओर थोड़ा सा लैंड का टुकड़ा बच जाता है और उसके चारों ओर वाटर लेता है, तो ऐसे आइलैंड बने हैं। और सभी जो इंडिया में आइलैंड है मोस्टली हम कह सकते हैं कि इस वजह से ही बने हैं। वाई आर डेजर्ट थिनली पॉपुलेटेड, मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों होता है? और ये क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, गिव जियोग्राफिकल रीजन। देयर इज लेस पॉपुलेशन इन डेजर्ट। The soil is sandy in desert. Most part of it is dry, barren and uninhabited land. Its climate is dry and continental. There is very little rain in desert. There is always a water shortage and people suffer about the problem of requirement of commodities that is necessary for routine life. That is why there is less population in desert. पहले तो डेजर्ट की ज़मीन सैंडी होती है, उसका मोस्ट ऑफ पार्ट ड्राई और अनहैबिटेड रहता है जो सूटेबल नहीं होता है हमारे लिए। तो इस और वहाँ पे रेन भी बहुत कम होती है क्योंकि सैंडी डेजर्ट होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर कांटे वाली झाड़ियाँ उगती है जो बारिश कम लाती है, राइट। तो पानी की शॉर्टेज की वजह से लोग और उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाने की वजह से वहाँ पे कम पॉपुलेशन होता है। The plains of the north are densely populated, yes or no? Why? Give geographical reason. Population is dense in northern plains. Dense means बहुत ही ज़्यादा। Yes, population is dense in northern plains. The northern plains region is formed of the fertile alluvium of Himalayan rivers like Satluj, Ganga, Yamuna, Brahmaputra and their tributaries. It is one of the most fertile and level plains of India. The rivers here are perennial,
So irrigation is very well developed in northern plain because of good agriculture and industrial development. Large cities like Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Kolkata, etc. have developed in these region. Due to above mentioned reason, the population is dense in the northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी वजह है कि हिमालय से जो निकलती रिवर्स हैं लाइक सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, वो सभी बहुत ही बड़ी बड़ी रिवर्स है और उसके जो प्लेन्स है वो लेवल में होते हैं, तो इस वजह से क्रॉप का इरिगेशन भी बहुत ही अच्छा होता है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज़ लाइक सिटीज़ में बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो इस वजह से इस पार्ट में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैव बिग सिटीज़ डेवलप नियर सी कोर्ट्स? बिग सिटी सी कोर्ट्स के नज़दीक क्यों डेवलप होती है? और ये क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जाए कि गिव जियोग्राफिकल रीजन लार्ज सिटीज़ डेवलप नियर द सी कोर्स, तो उसका हम रीज़न देंगे कोस्टल लैंड्स इज़ अ लेवल लैंड एंड इज़ फर्टाइल ऑल्सो, beside the land is also useful for transportation, for fishing industries, domesticate and foreign trade can be carried out from the sea coast, that is why large cities grow near sea coast. जैसे कि हमें पता है कि कोस्टल लैंड है, दरिया के आसपास की ज़मीन जो बहुत ही लेवल्ड होती है और फर्टाइल भी होती है, इसी वजह से वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित है, इसलिए जो लार्ज सिटीज़ है वो दरिया किनारे के नज़दीक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफ़ देयर वाज नो वेरिएशन इन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया? क्या होता अगर इंडिया के फिजियोग्राफी में कोई भी वेरिएशन ना होता, अलग ना होती? तो इसके रीजंस हम देंगे वी वुड नॉट हैव द हिमालयन माउंटेन वी सर्व्स एज द नेचुरल वॉल लाइक बाउंड्री ऑब्स्ट्रक्ट्स द कोल्ड चिलिंग विंड्स एंड लोअर्स द माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, पहला रीज़न है कि अगर हमें एक जैसी ज़मीन होती सभी जगह पे तो हमें नेचुरल बाउंड्री लाइक हिमालयन रेंज नहीं मिलते जो हमें चाइना की तरफ से आते हुए ऑब्स्टिकल्स और ठंडी हवा से बचाते हैं। Let's see the second point. We would not have the hill station, holy pilgrimage places, the lofty peak like Goodwin Austen and perennial rivers which lie deposit fertile alluvium throughout the year. अगर फिजियोग्राफी इंडिया की वेरिएशन ना होती तो हमें हिल स्टेशन नहीं मिलते, होली पिलग्रिमेज प्लेसेस नहीं मिलती, राइट, जो हाइट पे हैं, और गुडविन ऑस्टिन जैसे पीक नहीं मिलते, और रिवर्स के जो फर्टाइल एल्यूवियम है, एल्यूवियम का मतलब है कि बाढ़ के समय नदी में जब भी बाढ़ आती है तो उस समय नदी के साथ जो कचरा बह के आता है, जो ज़मीन बह के आती है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, जो धीरे धीरे बाढ़ कम हो जाती हैं और वो ज़मीन वहीं की वहीं रह जाती है, तो वो ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन होती है, बहुत ही फलद्रुप होती है, उसमें हम सभी तरीके के अनाज पका सकते हैं, तो इस तरह की ज़मीन भी नहीं मिलती। Number 3, we would not have gained the large and fertile northern plains. Large city develops along the rivers and Deccan Plateau in the form of treasury of minerals. Right? अगर फिजियोग्राफी वेरिएशन नहीं होती तो हमें नॉर्दर्न के प्लेन्स नहीं मिलते, लार्ज सिटीज़ नहीं मिलती जो रिवर्स के साथ डेवलप्ड है, डेक्कन प्लेटू जिसमें बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है वो भी नहीं होते। वी वुड नॉट हैव 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्री सिटीज़। वी वुड नॉट हैव गॉट द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज़ अलॉन्ग द सी कोस्ट। ओके, वेरिएशन ना होता तो फिजियोग्राफी में हमारे पास इतनी कोस्ट लाइन नहीं होती और ट्रांसपोर्टेशन और फिशरी की इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज़ नहीं मिलते अलोंग द सी कोस्ट।
Now let's see question number 2. State whether the following statements are true or false. India is the seventh largest country in the world in the terms of area. It's true. Mount Everest is the highest peak of India. It's false. The plateau region of central and south India are known as the treasure house of minerals. Is true. Number 4. The Tropic of Capricorn passes through India. It's false. Number 5. The run of Kutch is very sandy, and it's false. So here, dear students, our textual exercise is also gets over. Watch this video carefully. Thank you very much. Have a nice day.